خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی تلاوت کے بعد قرآن مجید کی ایک معروف آیت میں آپ حاضرین کی خدمت میں پیش کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی کی روشنی میں آپ حاضرین کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا، ہم اور آپ کو جب نیند لینا ہو، ہم اور آپ کو جب سونا ہو تو کن کن چیزوں کا پاس و لحاظ ہمیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے تعلق سے ہم اور آپ کی کیا رہنمائی کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام لوگوں کو باتیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا، جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رسول بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پہنچایا ہے ان پر کاربند ہونا، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی طرف سے ہم اور آپ کو بتایا، ان میں سے ایک سونے کا ادب ہے۔ آئیے ہم اور آپ دیکھیں سونے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کی کیا رہنمائی کیا ہے۔ سونے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہم اور آپ کو یہ حکم دیا کہ سونے سے پہلے گھر کا دروازہ بند کر دیا کرو۔ گھر میں اگر کوئی چیز کھلی ہے، چاہے کھانے کی چیز ہو، چاہے پینے کی چیز ہو، ساری چیزیں بند کر دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطفئوا المصابیح اذا رقدتم، جب تم سونے کا ارادہ کرو تو چراغ بجھا دو، وغلقوا الابواب، اور دروازے بند کر دو، واوقوا الاسقیہ، اور پانی کا گھڑا ہے، پانی کا مٹکا ہے یا پانی سے بھری کوئی چیز ہے تو اسے بھی ڈھک دو، وخمروا الطعام والشراب، اور کھانے پینے کی تمام چیزیں ڈھک دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولو بعود تعرضہ علیہ، اگر آپ کو ڈھکنے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو ایک لکڑی ہی سے کیوں نہ ڈھک دو، لیکن ضرور بضرور ڈھک دو۔ اس روایت سے ہم اور آپ کو پتہ یہ چلا کہ جب ہم اور آپ سونے کا ارادہ کریں تو جو بھی چیز ہمارے گھروں میں رکھی ہوئی ہے، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو، چاہے وہ پینے کی چیز ہو، ہر چیز کو ہم اور آپ ڈھک دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو گھروں کا دروازہ بند کر دیا کرو۔ اب یہاں پر ہم اور آپ کے دماغ میں یہ سوال گونج رہا ہوگا کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کا دروازہ اور گھروں کی تمام چیزیں بند کرنے کا حکم کیوں دیا؟
जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अग़लिक़ुल अबवाब वज़्कुरु स्मल्लाह, कि जब तुम सोने का इरादा करो तो दरवाजे बंद कर दो और अल्लाह का नाम लो। फ़इन्न शैताना ला यफ्तहु बाबन मुग़लक़ा, क्योंकि शैतान बंद दरवाजा नहीं खोल पाएगा। यानी आप सोते वक्त अगर अपने घर का दरवाजा बंद करते हैं और दरवाजा बंद करते वक्त आप अल्लाह का नाम लेते हैं, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान वो बंद दरवाजा नहीं खोल पाएगा। यहाँ पे हम और आपको पता ये चला कि जब हम और आप सोने का इरादा करें तो अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिया करें और बंद करते वक्त हम अल्लाह का नाम लें, यानी बिस्मिल्लाह अपनी जबान से अदा करें, बिस्मिल्लाह का कलिमा अपनी जबान से कहें। दूसरी चीज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्फ़िउल मसाबीहा इज़ा रक़दतुम, सोने से पहले चरागों को बुझा देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सोने का इरादा करो तो चरागों को बुझा दो। और एक दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तत्रुकुन नार फी बुयूतिकुम हीना तनामून, जब तुम सोने का इरादा करो तो अपने घरों में आग जलती हुई न छोड़ दो। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मदीना में एक घर और उसके घर वाले तमाम के तमाम लोग इसी आग से जल गए, इसलिए कि घर वालों ने सोते वक्त आग नहीं बुझाया और आग का थोड़ा हिस्सा उनके लिए नुकसान का सबब बन गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हाज़िहिन नारा इन्नमा हिया अदुउल लकुम, यकीनन ये आग तुम्हारी दुश्मन है। फ़इज़ा निमतुम फ़अत्फ़िहुहा अन्कुम, जब तुम सोने का इरादा करो तो इसे बुझा दो। भाइयों, आज हमारे दौर में और हमारे वक्त में अब चिराग नहीं रह गया है, अब लाइट का वजूद हो गया है, हमारे घरों में बल्ब जलता है, लेकिन आज भी वही हुक्म है जो इससे पहले हुक्म था, इससे पहले चिराग था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चिराग को बुझाने का हुक्म दिया था, कहीं ऐसा ना हो कि ये चिराग तुम्हारे लिए नुकसान का सबब बन जाए, तुम्हारे लिए मुज़िर बन जाए। हो सकता है कोई चिंगारी उड़े और आपके घर का आपका घर खाकिस्तर हो जाए, आपके घर के जलने का सबब बन जाए। आज हमारे घरों में बल्ब है, आज हमारे घरों में लाइट है, अगर ऐसा खतरा महसूस हो कि आग की बल्ब जलाने से हमारे घर को नुकसान पहुंच सकता है, हमारे घर के पड़ोस वालों को नुकसान पहुंच सकता है, तो हम और आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चिराग के सिलसिले में जो तालीम दिया है, वही तालीम यहाँ भी हम और आपको समझना होगा और वही तालीम यहाँ भी हम और आपको इस्पा करना होगा। तीसरी चीज, सोने के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको रहनुमाई किया, सोने से पहले वजू कर लो। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अखज़ता मदजाका फतवज़्ज़ा वज़ूअका लिस्सलाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप अपने आराम गाह पर आने का इरादा करें, जब आप सोने का इरादा करें, तो नमाज की तरह आप वजू कर लें। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको ये रहनुमाई किया कि सोने से पहले बावजू हो जाएं, वजू कर लें। अब यहाँ पे हम और आप ये समझें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले वजू करने का हुक्म क्यों दिया है,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले वजू की तरगीब क्यों दिया है? इमाम नववी रहमहुल्लाह ने इस हदीस की शरह करते हुए फरमाया कि अगर आप वजू करके सोते हैं तो इसमें 3 फायदा है। सबसे पहला फायदा ये, आप जब सोते हैं हो सकता है सोने की हालत में आपकी मौत आ जाए, और ऐसे बहुत सारे अहबाब को आपने देखा होगा, बहुत सारे अहबाब को आपने सुना होगा कि रात में सोए लेकिन जब सुबह हुई तो वो नहीं उठे, क्योंकि नींद की हालत में उनकी रूह कपसे उमसरी से परवाज कर गई, उनका इंतकाल हो गया, वो फौत हो गए। और घर वालों ने जब सुबह जगाने का इरादा किया, जगाते रहे, और जब वो ना उठे और उनसे जब पूछताछ की गई, लाकर लोगों को दिखाया गया, तो पता चला नींद ही की हालत में इनका इंतकाल हो गया है। भाइयों, अगर आप बावजू होकर सोते हैं और कहीं नींद ही की हालत में आपकी वफात हो जाती है, तो गोया आपकी वफात वजू की हालत में होगी, तहारत की हालत में होगी। दूसरा सबब इमाम नववी रहमहुल्लाह ने बताया है, वजू करके अगर कोई सोता है तो जो ख्वाब देखता है वो ख्वाब अक्सर बेशतर सच्चे हुआ करते हैं। गोया वजू करने का एक फायदा ये भी है। तीसरी चीज, आप अगर सो जाते हैं और वजू नहीं करते हैं तो ऐसी सूरत में मुमकिन है शैतान आपके साथ खिलवाड़ करे, और नींद की हालत में शैतान आपको परेशान करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको तालीम दिया कि हम और आप वजू करके सोए, बावजू होकर सोए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम के पीछे एक तीसरी हिकमत ये है कि शैतान आपसे खिलवाड़ नहीं कर पाएगा, रात में आपको वो जगा नहीं पाएगा। आपको अगर वो खौफ दिलाना चाहेगा, आपको चौंकाना चाहेगा, तो शैतान आपको नहीं चौंका सकेगा। ये 3 हिकमत है जिसकी बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको ये हुक्म दिया कि जब हम और आप सोने का इरादा करें तो सोने से पहले हम और आप वजू कर लें और बावजू होकर सोएं। चौथा अदब, चौथी सुन्नत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप सोने का इरादा करें तो सोने से पहले आप अपना बिस्तर झाड़ लिया करें, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अवा अहदुकुम इला फिराशी फलयनफुज़ फिराशहु बिदाखिलते इज़ारिही फइन्नहु ला यदरी मा खल्क़हु अलैहि। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई सोने का इरादा करे, जब तुम में से कोई अपने बिस्तर के पास आए तो उसके एजार के नीचे से, उसके एजार के अंदर से अपने बिस्तर को झाड़ ले, क्योंकि वो नहीं जानता है कि उसके बिस्तर पर कौन सी चीज है। एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा जाआ अहदुकुम फिराशहु, जब तुम में से कोई अपने बिस्तर के पास आए, फलयनफुज़हु बिसरफती तौबिही सलासा मर्रात, तो अपने बिस्तर का किनारा पकड़े और उसे 3 मरतबा झाड़े। और एक तीसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अवा अहदुकुम इला फिराशिही, जब तुम में से कोई अपने बिस्तर के पास आए, फलियाखुज़ दाखिलता एज़ारिही, तो बिस्तर के एज़ार का अंदरूनी हिस्सा पकड़े, फलियनफुज़ बिहा फिराशहु, और उसके जरिया अपना बिस्तर झाड़े, वलियसुम्मिल्लाह, और अल्लाह का नाम ले, फ़इन्नहु ला यअलमु मा खल्फ़हु माज़ा अला फिराशिही, क्योंकि वो नहीं जानता है कि उसके बिस्तर पर उसके पीछे
क्या है? गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको ये हुक्म दिया कि सोने से पहले हम और आप अपना बिस्तर झाड़ लिया करें, और झाड़ने का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको बताया कि बिस्तर का किनारा जो होता है, बिस्तर का जो कोना होता है, वो कोना पकड़ करके हम और आप झाड़ें, बीच वाला हिस्सा ना पकड़ें। आइए हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झाड़ने का हुक्म क्यों दिया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको ये हुक्म क्यों दिया है कि बिस्तर का किनारे वाला हिस्सा हम और आप पकड़ कर झाड़ें। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने इस हदीस की शरह करते हुए लिखा है, आपको नहीं मालूम है कि आपके बिस्तर पर क्या है। हो सकता है कोई कीड़ा आपके बिस्तर पर आ गया हो सकता है सांप आ गया हो, बिच्छू आ गया हो, कोई मूजी जानवर आ गया हो, कोई खतरनाक और तकलीफ देने वाला कीड़ा आपके बिस्तर पर आ गया हो और आप ना जानते हो। ऐसी सूरत में अगर आपने बगैर झाड़े अपने आप को बिस्तर पर पेश कर दिया तो हो सकता है वो जानवर, वो कीड़ा आपको तकलीफ पहुंचाए और आपकी तकलीफ का सबब बन जाए। लेकिन जब आप अपना बिस्तर झाड़ देंगे और आपके बिस्तर पर कोई ऐसी चीज होगी जो आपके लिए तकलीफ का सबब हो, तो वो चीज ज़ायल हो जाएगी और आप उसकी तकलीफ से बच जाएंगे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको ये हुक्म दिया कि जब तुम में से कोई अपने बिस्तर के पास आए, जब तुम में से कोई सोने का इरादा करे, तो उसे चाहिए कि अपना बिस्तर झाड़ ले। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया कि अपना बिस्तर 3 मरतबा झाड़े। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया कि बिस्तर का किनारे वाला हिस्सा यानी कोना पकड़ करके झाड़े। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा? क्योंकि जब आप कोना पकड़ कर झाड़ेंगे तो अगर बीच में कोई जानवर, कोई कीड़ा होगा तो वो आपके लिए तकलीफ का सबब नहीं बनेगा। आप नहीं जानते हैं और इत्तेफाक से आपने बीच वाला हिस्सा पकड़ने की कोशिश किया। हो सकता है कीड़ा वहीं हो, बिच्छू वहीं हो, तकलीफ देने वाला जानवर वहीं हो। आपने बिस्तर पकड़ने का इरादा किया, लेकिन वो कीड़ा, वो जानवर और वो तकलीफ पहुंचाने वाला कीड़ा आपको तकलीफ पहुंचा गया। इसलिए आपको चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हिदायत पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रहनुमाई पर अमल करें। सोने से पहले अपना बिस्तर झाड़ लिया करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झाड़ने का जो तरीका हम और आपको बताया, वही तरीका हम और आप अपनाएं। 5वां अदब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको ये हुक्म दिया कि जब हम और आप सोए तो दाएं करवट पर सोएं, बाएं करवट पर ना सोए। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अतैता मदजाक, जब आप अपने आराम गाह पर आए, यानी जब आप सोने का इरादा करें, फतवज्जा वज़ूअका लिस्सलाह, तो नमाज की तरह वजू करें। सुम्मा इस्तजे अल्लाह शिक्कल अयमन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर आप अपने दाएं करवट पर सो जाएं। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको ये हुक्म दिया कि जब आप सोने का इरादा करो तो आप अपने दाएं करवट पर सोओ। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाएं करवट पर सोने का हुक्म क्यों नहीं दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं करवट पर सोने का हुक्म क्यों दिया? कुतुबे अहादीस में
और शुरुआत में इसका कोई सबब मुझे नहीं मिला, लेकिन डॉक्टरों ने इसका फायदा ये बताया है कि इंसान जब दाएं करवट पर सोता है तो ऐसी सूरत में उसके दिल का दौरानिया और उसके खून की गर्दिश सही सालिम होती है। उसके खून के दौरानिये में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है और उसके दिल पर कोई असर नहीं पड़ता है। साथ साथ अतिबा ये भी बताते हैं कि उसके दिल को ताकत नहीं लगानी पड़ती है। लेकिन एक इंसान जब बाएं करवट पर सोता है तो ऐसी सूरत में वो सारी तकलीफ होती है जो दाएं करवट पर सोने में तकलीफ नहीं होती है। यानी खून के दौरानिया में काफी दिक्कत होती है, काफी तकलीफ होती है, दिल बड़ी तकलीफ के साथ काम करता है और ऐसी सूरत में इंसान की मौत भी हो सकती है, जैसा कि आप जानते हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ हमारे और आपके लिए रहबर थे, रहनुमा थे, दीन की बातें बताते थे, वहीं पर लोगों ने कहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक माहिर तबीब भी थे, एक माहिर डॉक्टर भी थे। नंबर 6, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको ये तालीम दिया कि जब आप सोने का इरादा करें तो आपका दायां हाथ आपके दाएं गाल के नीचे हो, जैसा कि हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अख़ज़ा मज़जाहु मिनल लैल वज़ा यदहु ताता खद्दी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने का इरादा करते थे तो अपना हाथ अपने गाल के नीचे रख लिया करते थे। और बाज़ रिवायतों में यदहुल युमना दाएं हाथ का तज़किरा है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दायां हाथ का मतलब ये दाईं हथेली अपने गाल के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल है। इसलिए हम और आपको चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम को हिर्ज़े जान बनाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम पर हम और आप अमल करें। नंबर 7, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको तालीम दिया कि जब आप सोने का इरादा करें तो आप दुआएं पढ़ें, आप ज़िक्र अज़कार पढ़ें। आइए चंद अज़कार मैं आप हाज़रीन की खिदमत में पेश करता हूँ जिनका ताल्लुक सोने से है। सोते वक्त सबसे पहली चीज, आप जब सोने का इरादा करें तो आयतल कुर्सी पढ़ें। आयतल कुर्सी पढ़ने से सुबह तक अल्लाह ताला की तरफ से एक मुहाफिज आपके पास आएगा, एक हिफाजत करने वाला अल्लाह ताला आपके लिए मुकर्रर कर देगा और सुबह तक शैतान आपको तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की मारूफ रिवायत आपने सुना होगा, कई मर्तबा शैतान चोरी किया, पकड़ा जाता, गिरिया उजारी करता, मिन्नत समाजत करता, अबू हुरैरा उसको छोड़ देते। एक मर्तबा जब वो पकड़ा गया तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने गिरिया उजारी करने लगा तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नहीं, आज मैं तुझे पकड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। तो उसने कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ कि जब तुम वो पढ़ लोगे तो शैतान तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा और अल्लाह ताला की तरफ से एक हिफाजत करने वाला तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि वो क्या है? तो उस शैतान ने कहा, आयतल कुर्सी। चूंकि अबू हुरैरा ये नहीं जानते थे कि ये शैतान है। आप लोग आगे हो जाइए, आगे हो जाइए, देखिए पीछे पूरा भर चुका है और आगे भी आ रहे हैं, जल्दी कीजिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि आखिर वो क्या चीज है? तो उसने कहा,
आयतल कुर्सी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने छोड़ दिया, और जब सुबह हुई तो अबू हुरैरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और कहा कि आज वो चोर फिर आया था और मैंने उसे फिर पकड़ लिया, और जब उसने गिरफ्तारी किया तो मैं उसकी बात नहीं माना। मैंने कहा कि आज तुझे पकड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलूंगा, तो उसने मुझसे कहा कि अगर आप ये दुआ पढ़ लेते हैं तो शैतान आपके करीब नहीं आ पाएगा, क्योंकि अल्लाह की तरफ से हिफाजत करने वाला एक शख्स आपके पास मुकर्रर हो जाएगा। मैंने उससे पूछा क्या है, तो उसने कहा आयतल कुर्सी यानी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये पूरी आयत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैसे वो हकीकत में झूठा है, लेकिन ये बात जो तुम्हें बताया है ये उसने सही बताया है। फिर अबू हुरैरा से पूछा कि अय अबू हुरैरा तुम जानते हो वो कौन था? अबू हुरैरा ने फरमाया नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शैतान था जो तुम्हें हैरान कर रहा था, जो तुम्हें परेशान कर रहा था, लेकिन उसने ये बात सही बताया है। इससे पता ये चला कि अगर हम और आप सोने का इरादा करें तो आयतल कुर्सी यानी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ये पूरी आयत पढ़ करके हम और आप सोएं। दूसरा जिक्र सूरह बकरा की 2 आयतें। सूरह बकरा तकरीबन 286 आयतों पर मुश्तमिल एक सूरत है जो तकरीबन 2.5 पारा पर मुश्तमिल है। आखिर की 2 आयतें भी हम और आपको सोने से पहले पढ़ने की तरगीब दी गई है। अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़रअ हातैनिल आयतैन मिन आखिर सूरतिल बकरा फी लैलतिन कफ़ता, जिसने सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतें पढ़ा तो वो दोनों उसके लिए काफी हो जाएंगी। इसका कई माना बनाया गया है, इसका कई माना बताया गया है, जिनमें से एक माना ये भी बताया गया है कि अगर आप ये दोनों आयतें पढ़ लेते हैं तो शैतान से आप महफूज हो जाएंगे, शैतान से आपकी हिफाजत होगी, शैतान से आप बच जाएंगे। इसी तरह एक तीसरा जिक्र, जब आप सोने का इरादा करें तो आप सूरह इखलास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास ये तीनों सूरतें पढ़ें और पढ़ने के बाद अपने हाथों पर फूकें और फूकने के बाद सोए सोए आप अपने सर से अपने पूरे जिस्म का मसा करें जहाँ तक आपका हाथ जाता हो। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर के पास आते तो रोजाना का मामूल था, हर रात का मामूल था कि वो अपनी दोनों हथेलियों को इस तरह करते, अपनी दोनों हथेलियों को इस तरह करते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास यानी सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास ये तीनों सूरतें पढ़ते और अपने जमा किए हुए हाथ में फूंकते, और फूंकने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल करते कि अपना हाथ अपने सर से और जहाँ तक आपका हाथ जाता अपने हाथ से पूरे जिस्म का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसा करते थे। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल रहा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके मुरब्बी थे, मुअल्लिम थे, हमारे और आपके रहबर थे। इसलिए हम और आपको चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा करें और आपकी बात माने। भाइयों पीछे आदमी खड़े हैं, जगह खाली है, थोड़ा आप लोग आगे हो जाइए। आगे की जगह पहले भरना चाहिए, जो पहले आते हैं उनको आगे की जगह पहले भरना चाहिए। ये बात कई बार बताई गई है, कई बार रहनुमाई की गई है, और इसका ताल्लुक समझ से है।
वो भी हमारे भाई हैं, उनको भी सुन्नत पढ़ना है। इसलिए इस तमाम चीजों का ख्याल कीजिए। मैं आपके सामने बच्चा हूं, आप समझदार हैं। जो पहले आए उनकी जिम्मेदारी है कि वो पहले बैठें और पहले सब मुकम्मल हो जाए तब दूसरे में बैठें। अब पीछे बैठोगे और बिखर के बैठोगे, बाद में आने वाले कैसे बैठेंगे? और ये जुमा पे बयान भी हो चुका है, कई बार कहा जा चुका है, बुरा ना मानिए, मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात हक है कि आगे जगह खाली है और पीछे बैठे हैं, आदमी आते हैं वहीं खड़े रहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोते थे तो सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, ये तीनों सूरतें पढ़कर अपने हाथ पे फूंकते थे और फिर अपने पूरे जिस्म पर सर से लेकर जहां तक उनका हाथ पहुंचता मसा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा करते हुए हम और आपको भी ऐसे करना है। अब इसे कैसे करोगे? अल्लामा इब्ने उसैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं, एक मर्तबा पहले आप हाथ ऐसे बनाइए, अब एक मर्तबा सूरह इखलास पढ़िए, फिर फूंकिए, फिर सूरह फलक पढ़िए, फिर फूंकिए, फिर सूरह नास पढ़िए, फिर फूंकिए। अब उसके बाद में आप सर से लेकर के अपने पूरे जिस्म पर मसा कीजिए। एक मर्तबा हो गया, फिर आप ऐसे बनाइए, फिर सूरह इखलास पढ़िए, फिर फूंकिए, फिर सूरह फलक पढ़ करके फूंकिए, फिर उसके बाद में सूरह नास पढ़ करके फूंकिए, फिर आप अपने सर से पूरे जिस्म का मसा कीजिए जहां तक आपका हाथ पहुंचे, फिर तीसरी मर्तबा ऐसे हाथ बनाइए, फिर ऐसे ही अमल कीजिए। 3 बार पढ़कर फूंकने का मतलब अल्लामा इब्ने उसैमीन रहमहुल्लाह ने यही बताया है कि ये अमल ऐसे ही 3 मर्तबा कीजिए। भाइयों, वक्त भी हो चुका है और ये खुतबा 2 हिस्सों में है। आज के जुमा में इस खुतबे का ये पहला हिस्सा बयान किया गया है, सोने की सुन्नतें क्या क्या हैं। अभी सोने की सुन्नतें और बहुत सारी हैं, जब इसके बाद नंबर आएगा तो यही उन्वान होगा, लेकिन जहां पे खत्म किया गया है यहीं से आगे का हिस्सा खुतबे जुमा में इंशाअल्लाह लिया जाएगा। मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं, मौलाए करीम हम तमाम लोगों को बातें समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। भाइयों, देखिए, शरीयत ने हमें हर चीज का तरीका बताया है, चाहे दुनियावी मामला हो, चाहे दीनी मामला हो, चाहे नमाज पढ़ना हो, ज़कात देना हो या इसके अलावा कोई और मसाला हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई किया है। हो सकता है आप ना जानते हों, ना जानने की बिना पर ये गलती कर रहे हों, तो जानने वाले की जिम्मेदारी है कि वो बताए, और जब कोई बताए तो सुनने वाले की भी जिम्मेदारी है कि उसे अमल करे, उसे बरूए कार लाए। अब देखिए, जुमा के आदाब में से एक अदब तो ये है, और जुमा ही नहीं बल्कि हर नमाज का मामला है, कि जो पहले आए वो पहली सफ में बैठे, और पहली सफ जब मुकम्मल हो जाए तब दूसरी सफ का नंबर लगाओ, दूसरी मुकम्मल हो जाए तब तीसरी का नंबर लगाओ। इस तरह से सब बसब होके बैठो। जब आप सब बसब होके बैठेंगे तो शरीयत पर भी अमल होगा और आने वालों को दिक्कत नहीं होगी। अब जुमा के ताल्लुक से एक लंबी रिवायत है, उसमें आप वसल्लम ने फरमाया है कि फांद करके नहीं आना चाहिए। अब देखिए, यहाँ जगह खाली है ना, अब पीछे जो भाई खड़े हैं,
اگر باندھ کر آتے ہیں تو غلط تو کرتے ہیں، لیکن غلطی کا سبب آپ ہی ہیں، اس لیے کہ آپ پہلے آئے اور آگے کی جگہ نہ لے کر کے آپ پیچھے بیٹھ گئے۔ اب جب آگے کی جگہ خالی ہے تو آنے والوں کو دقت ہوگی، انہیں سنت پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک آدمی آیا اور بیٹھ گیا اور خطبہ دے رہے تھے، خطبے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور اس آدمی سے کہا اٹھو 2 رکعت پڑھ لو تب بیٹھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو تلقین کیا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ اب بتاؤ، بکھر کر بیٹھے ہو، آگے کی جگہ خالی ہے، وہ بیچارے آئے ہیں، دیکھو پیچھے کتنے لوگ کھڑے ہیں، تقریباً 6-7 لوگ کھڑے ہیں، ان سے پوچھو سنت پڑھ پائے؟ سنت نہیں پڑھ پائے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آگے جگہ خالی ہے، میں 2 مرتبہ کہا لیکن آپ لوگ سرکے نہیں۔ میں آپ کی رسوائی نہیں کرتا ہوں، معافی چاہوں گا، لیکن آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ اور اس طرح کی حرکتیں کرنا اور اس طرح کی حرکتیں انجام دینا یہ کہاں تک صحیح ہے۔ میں جب آیا ہوں اس مسجد میں، ویسے میں تقریباً 3 سال تک اس مسجد کا امام رہا ہوں اور اکثر و بیشتر خطبوں کے بعد میں اس کی طرف رہنمائی کیا ہوں اور باقاعدہ جمعہ کے مسائل پر خطبہ بھی دیا ہوں، اور جب آتا ہوں جب یہ چیز دیکھتا ہوں، بھائیوں یہ کیا ہے، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اپنے بھائیوں ہی کے لیے تکلیف کا سبب کیوں بنتے ہیں؟ آخرکار نماز کے بعد میں سب کو جانا ہی ہے، تو پیچھے بیٹھنے میں آپ کو کیا ملے گا اور آگے بیٹھیں گے تو آپ کو کیا نقصان ہے؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے میری گزارش ہے کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ دیکھیے اگر ابھی آپ لوگ صحیح سے بیٹھنے کا ارادہ کرو بیٹھے ہیں تو آگے پیچھے ابھی 2 صف خالی ہو جائے گی، 2 صف کی جگہ خالی ہو جائے گی، تو اس پر تھوڑا توجہ دیجیے۔ پیچھے ہی بیٹھتے ہیں، آگے کی جگہ خالی رہتی ہے، دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ میں معافی چاہوں گا، میں کسی کی رسوائی نہیں کر رہا ہوں، میں ایک بات بتاتا ہوں کیونکہ بتانا اور اصلاح کرنا بھی ہماری ذمہ داری کا حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم وذکروا اللہ تعالی وعلا وعز واکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔